Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope by the grace of Almighty Allah that you all are fine. As this is class 10th and we are in touch with the chapter in civics, that is political parties. And in the last lecture we have already discussed the main party system is in democracy, that is single party is there, accordingly bi-party system or two-party system is there, and then multi-party system is there. So inshallah today I have taken one of the most important topics, and it's the last topic of this unit, that is challenges faced by political parties. What are the main challenges faced by political parties? So there we have already discussed that what do you mean by a political party. So what's a political party, Shabash? It's an organized group of people, it's an organized body of people who come together to contest elections in order to hold power. So उस टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि जो political party का main objective है, main motive है, that is to gain more and more power. Got it, Shabash? So आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी चैलेंजेस फेस कर रही हैं. गॉट इट, शाबाश. तो ये कहा जाता है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर फेसिंग मनी चैलेंजेस. पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग मनी चैलेंजेस, एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. यहाँ पे हम कुछ चैलेंजेस पढ़ने जा रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रहे हैं. समझाए, शाबाश. पहला जो चैलेंज है एज फार एज पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न्ड, दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. यू कैन राइट इट डाउन. द वेरी फर्स्ट चैलेंज फेस्ड बाय, शाबाश, faced by political parties, lack of internal democracy. Lack of internal democracy. अगर आपको ये बात पता होगी कि ये कहा जाता है that every member of the party does not have a chance to take part in the decision making process. शाबाश, पार्टी में जो भी मेंबर होता है, शाबाश, उसको ये मौका नहीं दिया जाता है कि he will take decision in the party. So very first point is there is lack of internal democracy. कि मीन्स की जो पार्टी में जो मेंबर्स होते हैं, every member of the पार्टी में जो भी मेंबर होता है does not have a chance to take part in the decision making process. मीन्स की every member, पार्टी में जो भी मेंबर हैं, everybody मतलब has not been given the chance to take part या to take part in the decision making process. तो हर कोई पार्टी में हर कोई मेंबर डिसीजन नहीं ले सकता है. समझ आया? तो यो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि एवरी मेंबर इज नॉट कंसल्टेड बिफोर टेकिंग अ डिसीजन. शाबाश, जब ये कोई भी डिसीजन लेते हैं तो शाबाश पार्टी का हर कोई मेंबर कंसल्ट नहीं किया जाता है. यू गॉट मी पॉइंट. सो फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. तो यहाँ पे आपको क्या पता होनी चाहिए कि एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव ए chance to take part in the decision making process. So in simple words we can say that every member is not consulted before taking a decision. तो जब वो कोई डिसीजन लेते हैं, they are not consulting every member of the party. वो पार्टी के हर मेंबर को कंसल्ट नहीं करते हैं. तो वहां यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे there is no proper organization or registration of members. तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, शाबाश, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और शाबाश रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए. किनकी? यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्ट्रेशन मेंबर्स होने चाहिए. बट व्हाट इज लैकिंग हियर, देयर इज, मैंने बोला कि देयर इज नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेंबर्स. तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले ही बोल दिया कि जो पावर है, पावर ये रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पर्सन्स, इज इट? पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू टॉप लीडर्स. जो टॉप लीडर्स होते हैं या जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, पावर उनके हाथ में रहता है. So when power remains in the hands of the top political leaders, when power remains in the hands of the great leaders, they do not consult ordinary members. जो ये top leaders होते हैं ये ordinary members को consult नहीं करते हैं. और जो ये ordinary members होते हैं ये भी पता होनी चाहिए, the ordinary members have no information about the internal working of the party. तो उन बेचारों को कोई क्या पार्टी की कोई पता नहीं होती है, मतलब हाउ पार्टी इज वर्किंग की उनको पता नहीं होती है. सो रिमेंबर, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, कौन, मैंने बोला कि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, तो ऑर्डिनरी मेंबर्स दे डोंट हैव द इंफॉर्मेशन. उन बेचारों के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है. किसकी? अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द पार्टी, कि पार्टी कैसे काम कर रही है. गॉट माय पॉइंट. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मीन्स द पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू टॉप persons, few top leaders, and what they are doing, they are not consulting any ordinary member. तो वो किसी ordinary member से कोई हेल्प नहीं लेते हैं. तो जो ordinary members होते हैं कि शाबाश
उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द पार्टी. सो इन शॉर्ट द फर्स्ट चैलेंज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज lack of internal democracy. Got it, Shabash? And accordingly, the second important challenge, the second main challenge faced by political party is dynamic succession. That is, Shabash? ये उसको बोलते हैं dynastic succession. So this is dynastic. डायनास्टिक सक्सेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय डायनास्टिक सक्सेशन? तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला है कि विद पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू टॉप लीडर्स. तो जब पावर किन किन में रहता है शाबाश, किन के पास रहता है? टॉप लीडर्स के पास जब क्या रहता है? पावर रहता है. विद पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू टॉप लीडर्स. सो व्हाट दे आर डूइंग? तो ऑल पार्टी डिसीजंस, ऑल पार्टी पोजीशंस गो टू देयर फैमिली मेंबर्स. तो जो भी बाकी पार्टी के पोजीशंस होते हैं, पार्टी के हाईएस्ट पोस्ट होते हैं, वो किन को जाते हैं? वो फैमिली मेंबर्स को जाते हैं. गॉट ए पॉइंट? सो इन इजी वर्ड्स आई कैन से दैट अ पर्सन हैविंग हिज फादर एज एमएलए, सो देन द सेम जॉब गोज टू हिज सन, whether that very person is qualified or not. So whether that very person can be qualified or not. So simply here I am going to say जो dynastic succession है, it is the main challenge faced by political parties. तो dynastic succession में क्या होता है? जो पावर मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि it remains in the hands of the few top leaders. तो जो फिर पार्टी पोजीशंस होती हैं, जो पार्टी के पोस्ट होते हैं, दे गो टू देयर फैमिली मेंबर्स. तो किनको जाते हैं? उनके फैमिली मेंबर्स को जाते हैं. तो जो ये मेंबर्स होते हैं, रिमेंबर दिस मेंबर्स मे नॉट बी क्वालिफाइड और दे डोंट हैव द एबिलिटी टू होल्ड देयर पोजीशंस. तो गॉट माय पॉइंट? सो जो ये मेंबर्स होते हैं शाबाश, मतलब दे मे नॉट बी क्वालिफाइड, दे विल बी टोटली अनक्वालिफाइड. उनके पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं होगी whether they are selected persons for the job or not. तो what I mean to say कि जो सेकंड चैलेंज फेस कर रहे हैं कौन? पॉलिटिकल पार्टी. दैट इज सिंपली डायनास्टिक सक्सेशन ऑफ शाबाश जैसा लीडर्स. तो यहाँ पे क्या होता है? पहले टॉप लीडर्स के पास पावर होता है, तो शाबाश अकॉर्डिंगली ये फिर उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ चला जाता है. तो ऑटोमेटिकली उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती कि वो इस पावर को आगे ले सके. सो इन शॉर्ट यू कैन से दे आर टोटली मिसयूजिंग द पावर. जब वो टोटल को मिसयूज पावर को मिसयूज करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे पोलिटिकल पार्टीज में प्रॉब्लम खड़ा होती है. गॉट इट शाबाश? थर्ड मेजर चैलेंज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी दैट इज मनी एंड मसल पावर. ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दैट इज शाबाश मनी एंड मसल पावर. money and muscle power. So this is another important challenge faced by political parties. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मतलब in order to organize this demonstrations, in order to organize public meetings, in order to organize speeches to publicize the image of the party, उसके लिए पैसे चाहिए. Isn't it? So money is किसने पैसे चाहिए? So money is needed. Remember, money is needed to organize demonstrations. Money is needed to organize public meetings. Money is needed to organize speeches. Isn't it? क्यों? टू पब्लिसाइज द इमेज ऑफ द पार्टी. अगर आपको अपनी पार्टी को पब्लिसाइज करना है शाबाश, अगर आपको अपनी पार्टी की शाबाश पब्लिसिटी करनी है, तो उसके लिए आपको पैसे की बहुत जरूरत है. Isn't it? So शाबाश you need money to publicize your party. You need money to organize demonstrations. You need money to go for public meetings. You need money to go for speeches. Isn't it? The main job is in order to make publicity of your party. तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? उसके लिए पैसे होने चाहिए. So remember, तो पार्टीज फिर उन कैंडिडेट्स को चूज कर रहे हैं. Remember, जो पार्टीज होते हैं ये फिर उन कैंडिडेट्स को चूज कर रहे हैं who can raise money for the party. Means कि who can be well off, who can be sufficient enough as far as money is concerned. So remember, party choose those candidates who can raise money for the party and win elections with their money. समझ आया? So शाबाश, तो वो इलेक्शंस उन्हीं के पैसे से जीतते हैं. So ये भी आपको क्लियर पता होनी चाहिए कि कभी कभार पार्टीज क्या कर रही हैं, कभी कभार पार्टीज उनको भी सपोर्ट कर रही है जो क्रिमिनल्स होते हैं. Sometimes parties also support criminals या क्रिमिनल कैंडिडेट्स बिकॉज दे कैन विन इलेक्शंस. तो उनका मेन जॉब होता है कि टू विन इलेक्शंस. सो एट टाइम दे कैन सपोर्ट criminals too. Got my point? So third point is money and muscle power. These are the two important points as far as political parties is concerned. When you are supposed to go for an election, when you are supposed to go for an election campaign, तो उसके लिए आपको money का होना जरूर, वहाँ पे पैसे होने चाहिए. Got it? And fourth important point, fourth important challenge faced by political parties is failure to provide a meaningful choice to voters. Remember, this is shabash, failure to provide a meaningful choice to voters.
तो ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फेलियर टू प्रोवाइड मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, क्यों किया जाता है, शाबाश। दिस इज बिकॉज, रिमेंबर दिस इज बिकॉज जो वोटर्स होते हैं, रिमेंबर। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि जो मेन चैलेंज, लास्ट वाला जो चैलेंज फेस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज फेलियर टू प्रोवाइड अ मीनिंगफुल चॉइस टू voters. So this is because of the decline in fundamental, या this is because of the decline in ideological differences among parties. तो parties में कभी कभार ideological difference face होती हैं, ideological difference की problem होती है in most parts of the world. Remember, so अगर आपको कोई बोलेगा why this is a challenge for political parties, that is failure to provide meaningful choice to voters. तो ये क्यों होता है, because of the fundamental differences among parties, because of the ideological differences among parties in most parts of the world. So this is the challenges faced by political parties. In this way we have finished this very lesson, and inshallah next lesson will be on outcomes of democracy. Thanks.